Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is AGRI-5321. Okay, so today we will discuss about the drought. Okay, so as we all know about that drought, what is the drought? If we the word drought is generally denotes the scarcity of water in a particular region. In a simple way we can say the scarcity of water in a region that would be a kind of drought region. Okay, एक जहाँ पे पानी की कमी है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो है वो एक एवरेज अवेलेबल मॉइस्चर वहाँ पे नहीं है. ठीक है, पानी की कमी है जहाँ पे उस सिचुएशन को या उस रीज़न को हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉट के कंडीशन पे हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ओके, या हम उसे उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. राइट, सो लेट अस मूव द definition of drought. Okay, so there are few definitions according to scientists and according to meteorological and irrigation department. Okay, so in a general way we would say the drought can be defined as a prolonged period without rainfall. बहुत ही काफ़ी समय से, अगर लंबे समय से अगर रेनफॉल नहीं होती, विदाउट रेनफॉल कोई एरिया होता है, विदाउट प्रेसिपिटेशन कोई एरिया होता है, दैट पर्टिकुलर एरिया वुड बी द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. Okay, then according to the Ramdas, which is the Indian scientist, since 1960 he said that drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation. ठीक है, drought जो है एक ऐसा एक ऐसा सीजनल वेरिएशन है रेनफॉल का, जो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही मीन डेविएशन से भी बहुत कम होता है. मतलब एक एवरेज मीन जो वैल्यू होती है हमारे रेनफॉल रिसीव करने की रीज़न पे, उससे भी जब कम परसेंटेज पे रेनफॉल रिसीव होता है, उस एरिया को हम ड्रॉट एरिया के कैटेगरी में रखते हैं. Okay, so in a general way we would say the drought as a situation occurring in any area where the annual rainfall is less than 75% of normal rainfall. ठीक है, जहाँ पे आपका 75% से कम वार्षिक वर्षा होती है, नॉर्मल वार्षिक वर्षा होती है, उस एरिया को हम ड्रॉट एरिया के वर्गीकरण में रख सकते हैं. ठीक है, सो डिफाइन ड्रॉट एज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर sufficiently prolonged for lack of water to cause a severe hydrological imbalance in the area affected. Okay, so ऐसा एरिया जहाँ पे हम कह सकते हैं, सिंपल वे से हम समझ सकते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो एक मीन डेविएशन या एक मध्यम जो हमारा एक स्टैंडर्ड स्केल है वहाँ से कम परसेंटेज में है, उस एरिया को हम ड्रॉट के कंडीशन पे रख सकते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर ऐसा एरिया जहाँ 75, जहाँ लेस देन 75% जो है नॉर्मल रेनफॉल रिसीव होता है, दैट एरिया में बी that area may be particular for the drought condition area. Okay, so let us move. Yes, there are few definitions like the same, that according to the Ramdas we would say the drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation. Okay, then the drought is defined by deviation from the normal rainfall. It can happen in all rainfall regions. It also occurs in high rainfall area but severity or frequency may vary. ठीक है, हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह पे भी ड्रॉट की कंडीशन उपलब्ध हो जाती है जहाँ पे एक मिनिमम या हम कह सकते हैं एक मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है. ठीक है, बट हो सकता है वो वेरी करता है. ठीक है, जो उसकी सिवियरिटी है या फ्रिक्वेंसी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, वो डिपेंड करती है. ठीक है, सो ड्रॉट इज कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रिक्टली मीटेरोलॉजिकल फिनोमिना. Why meteorological phenomena? Because the drought is direct related to the rainfall, our precipitation intensity, okay, our precipitation frequency also. ठीक है, इस वजह से हम एक ऐसा फिनोमिना है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो मीटेरोलॉजिकल है,
Okay, so it is also a complex phenomena whose severely depends on the precipitation amount, its time and space distribution, evaporation or evapotranspiration and the hydrological फैक्टर. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो आप याद रखेंगे. आप मेन डेफिनेशन आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे जो ड्रॉट जो है एक्चुअल अगर रेनफॉल से हमें बहुत ही कम रेनफॉल, एक मीन डेविएशन से मतलब कम रेनफॉल अगर किसी रीजन पे हम रिसीव करते हैं, वो एरिया जो होता है ड्रॉट के कंडीशन पे आता है. ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है. ओके ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्राइटेरिया फॉर ड्रॉट. ठीक है, क्या क्राइटेरिया है? सो दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी वुड से फॉर ड्रॉट कंडीशन. ठीक है, हम अलग अलग ड्रॉट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि किस कंडीशन में कितनी वर्षा रिसीव होती है, वो किस तरीके का ड्रॉट है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1960, the agricultural drought as an occasion when at least 4 consecutive received rainfall half of the normal. ठीक है, means normal rainfall being 5 mm or more during खरीफ क्रॉप सीजन. ठीक है, मतलब खरीफ सीजन पे अगर एग्रीकल्चरल ड्रॉट हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे 5 mm से भी कम वर्षा उपलब्ध होती है या कम प्रेसिपिटेशन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट के कंडीशन में आता है. ठीक है, कंजेक्टिव रिसीव्ड रेनफॉल मतलब एक के बाद एक. हम कह सकते हैं कंजेक्टिव रिसीव्ड रेनफॉल को हम फ्रिक्वेंसी से ले सकते हैं कि जो हमारी रेनफॉल की फ्रिक्वेंसी कितनी है. फ्रिक्वेंसी मतलब आज वर्षा हुई, कल भी वर्षा हो रही है, कितने गैप में, कितने दिनों के अंतराल में जो है हमारा वार्षिक वर्षा हो रहा है. ठीक है, तो वो आपका हो सकता है कंजेक्टिव रिसीव्ड रेनफॉल. Okay, then the drought area, so region where experience drought in more than 20% of year. ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ 20% से ज़्यादा ही वर्षा हो जाती है वो ड्रॉट एरिया कहलाता है. ठीक है, then the chronic drought area is also the terms for drought condition. So it is the regions where experience drought in more than 40% of the year. मतलब 40% जो है अगर वर्षा होती है उसको हम क्रोनिक ड्रॉट एरिया के कंडीशन पे लगते हैं. जहाँ 20% से अधिक वर्षा होती है उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉट एरिया के कंडीशन पे रखते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट इज द ड्रॉट फ्री period when cumulative actual evaporation curve is above cumulative potential evaporation by 2 curve. ठीक है, cumulative मतलब आपको ये याद करना है कि cumulative frequency, ठीक है, किस तरीके की फ्रिक्वेंसी है हमारी जो वर्षा की, वो जो है इवेपोरेशन का एक कर्व होता है. इवेपोरेशन का कर्व कैसे होता है? हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि इवेपोरेशन का जो कर्व होता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर का जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली होता है. ठीक है, उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? टेम्परेचर से एंड सोलर रेडिएशन से. ठीक है, जिस इंटेंसिटी से हमारा सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है और जितना टेम्परेचर उस पर्टिकुलर रीजन में है, अकॉर्डिंग टू ली कर्व जो है बढ़ता जाता है या कम होता जाता है. ठीक है, रिवर्स जाता है या फॉरवर्ड जाता है. ठीक है, तो ये जो कम्युलेटिव पोटेंशियल एवापोरेशन से हाफ होता है जस्ट. ठीक है, उस पीरियड को हम ड्रॉट फ्री पीरियड के कंडीशन पे रखते हैं. ओके, देन we have moderate drought period. Okay, so what is a moderate drought period? When cumulative actual evaporation curves lays between the cumulative potential evaporation by 2 and the potential evaporation by 4 curve. That is a formula for understand the moderate curve period or the drought free period. Okay, so in our previous lecture we had already discussed in detail, okay, what is the curve period and what is the evaporation period, something like that. So there's no need to explain again. I hope you all know about that. Okay, so severe drought period. What is the severe drought period? Severe name suggests that the बहुत ही ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, अधिक मात्रा में हो जाना. That means the when cumulative actual evaporation curve is below cumulative potential evaporation by 4, दैट वुड बी अ सीवियर ड्रॉट कंडीशन. ठीक है, तो ये एक बेसिक टर्म है जो एक क्राइटेरिया है ड्रॉट का. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने पर हम उस क्राइटेरिया में
उस ड्रॉट कंडीशन को या उस रीजन को हम रखते हैं, ठीक है। So I hope you all got the sense. Let us move in the next slide. Yes, the aridity versus drought. Okay, so most frequently, the students has been asked like, what is the arid difference between? We would say the difference between the aridity and drought. Okay, so we have to know the basic differences between what is the aridity and what is the drought, because the both are quite similar. There are some minor differences. Okay, so let us see. We have that three column, that the particular, first column is for the particular, which means the category, and then the aridity, what is the aridity, and then what is the drought. Okay, so duration, when we talk about the duration for aridity, we would say the permanent feature is known as aridity, and the drought is always the temporary conditions of scarcity of varying duration. Okay, so परमानेंटली अगर किसी एरिया पे पानी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, दैट एरिया वुड बी एरिड एरिया वी वुड से, एंड द ड्रॉट it may be a where the rainfall the maximum rainfall receives, that particular area might be the drought condition area in some time. Okay, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे अच्छी खासी वार्षिक वर्षा हो रही है वो भी एरिया जो है वो फ्रिक्वेंसी में वेरी होने की वजह से ड्रॉट के कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द कम्प्लीटली टेम्पररी फिनोमेना और टेम्पररी कंडीशन, बट aridity is a permanent feature. Okay, it is located by the some situation like जहाँ बहुत ज़्यादा सूखा है वो एरिया को हम एरिड कंडीशन पे रखते हैं, ठीक है। वो हमेशा वो एरिया जो है हमेशा उस फीचर में आता है, ठीक है। तो this is the basic differences between the aridity and drought. Okay, and then second is the factors like the accumulation of many long-term process considered all climatic features and caused by the deficient rainfall. जो ड्रॉट है वो बहुत कम पानी जो है रिसीव होने की वजह से, वर्षा रिसीव होने की वजह से उपलब्ध, मतलब हम कह सकते हैं कि वो फॉर्म होता है, बनता है, ड्रॉट की कंडीशन वहाँ पे बनती है, राइट। बट द एरिडिटी जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत सारे वेदर फिनोमिना है या वेदर एलिमेंट्स है जिनके डिस्टर्बेंस की वजह से एक रीजन जो है वो एरिड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कम्प्लीटली परमानेंट फीचर्स। ओके, देन द एस्पेक्ट डिस्क्राइब लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेट, मतलब अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, प्रेसिपिटेशन के साथ साथ टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड इफेक्ट कितना है, विंड वेलोसिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी कितना है, it is all these all elements are depend on the aridity system. Okay, and then when we talk about the drought, so we can say the description of वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, जो जितनी भी हमारे सॉइल में है या प्लांट में है या एटमॉस्फेयर में जितनी ह्यूमिडिटी या जितना मॉइस्चर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ड्रॉट को मेजर करते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द एरिडिटी एंड drought. Okay, so let us move in the next slide, which is the, yes, there is some drought and famine. Okay, what is the famine and drought? Okay, so sometimes the question has been asked from the students like the both are the similar, like famine मतलब क्या होता है, अकाल पड़ जाना। अकाल क्यों हुआ, सूखा हुआ, सूखा क्यों हुआ, हमने किसी क्रॉप का या हमारे भूखमरी आ गई, ठीक है, एक तरीके का ये सिस्टम है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रॉट, ड्रॉट क्या है, सूखा है। अब ये कैसा सूखा है, वो कम रेनफॉल रिसीव करने के कारण, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाने के कारण जो है ये सिचुएशन आई। ओके, सो लेट अस सी इन अ वेरी ब्रीफ कंडीशन, ब्रीफली बहुत ही हम देखते हैं कि क्या होता है ड्रॉट। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज अ लैक ऑफ वाटर, वेपर इन द एटमॉस्फेयर and the soil as well, okay, which causes the precipitation. A lack of moisture in air causes wildfire that can damage communities and food supplies, ruin the forests, harm people and animals.
ठीक है, हम सबको समझ आ रहा है कि जो लैक ऑफ वाटर है, लैक ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे फूड सप्लाई नहीं हो पाती, फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं हो पाते। एटमॉस्फेयर में जब तक वाटर वेपर अवेलेबल नहीं होंगे तब तक प्रेसिपिटेशन की जो फिनोमेना है, प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्रेसिपिटेशन नहीं होना मतलब वर्षा रिसीव नहीं होना, वर्षा रिसीव नहीं होना मतलब हमारी सॉइल पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या होना, सूखा हो जाना, ड्राई मॉइस्चर हो जाना, ठीक है, ड्राई कंडीशन हो जाना। ड्राई कंडीशन होने की वजह से जो सॉइल सरफेस है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, इट मे बिकम अ ड्रॉट कंडीशन, ठीक है, ये क्या होता है, ड्रॉट कंडीशन बन जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमाइन, व्हाट इज द फेमाइन, मतलब अकाल पड़ जाना। सो वी वुड से द फेमाइन इज अ वाइड स्प्रेड स्कैर्सिटी ऑफ फूड caused by the several factors including war, inflation, crop failure, population imbalance, or government policies. This phenomena is usually accompanied or followed by the regional malnutrition, starvation, epidemic and increased mortality. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो अकाल पड़ जाना विच इज़ अ वेरी रेयर प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस देयर आर सम different phenomena may occur like the population increase, the government policies may vary year to year, ठीक है, अलग अलग साल में अलग अलग पॉलिसीज़ बन रही है, ठीक है, या कहीं पे पानी नहीं हो पाया, या वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, ठीक है, या माल न्यूट्रिशन जैसे कुपोषण जैसे शिकायत अगर कहीं पे हो रही है, कुपोषण की शिकायत हो रही है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फूड चैनल नहीं हो पा रहे हैं, फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं फेमाइन कॉज करने के, राइट। देन द ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रॉट वी वुड से द ऑल द वाटर ऑन अर्थ only 0.003% is available fresh water that is not the polluted trapped in soil or for underground. During a drought, shared source of water such as river, reservoir and groundwater for well are in the jeopardy of running water. राइट, सो ऐसा सिचुएशन में जहाँ ड्रॉट कंडीशन होता है, ड्रॉट का कंडीशन होना मतलब प्रेसिपिटेशन कम हो जाना, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में कमी आ जाना, डिक्रीज हो जाना। प्रेसिपिटेशन में कमी आने से जो हमारे जो पॉन्ड होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक हमारे लिए एक अलार्म होता है, राइट, कि ये जो रीज़न है या इस कंडीशन पे when the annual rainfall receive less than 75% receive on the earth surface, that may become a drought reason, okay, तो क्या होता है, उस तरीके से आपका जो रीज़न है वो सूखे की स्थिति में आ जाता है, राइट। then the famine is very rarely happen because of a single event and often are the result of many years of struggling to grow food in a harsh environment, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में सही तरीके से सब कुछ नहीं चलना, प्रॉपर नहीं चलना, एलिमेंट्स में कुछ इम्बैलेंस हो जाना या एबनॉर्मलिटीज़ हो जाना, इस तरीके से जो होता है फेमाइन होता है। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस है ये यही है कि फेमाइन जो है वो बहुत सारे वेदर एलिमेंट्स जो हैं, वेदर एलिमेंट्स के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सारी जो सिचुएशन क्रिएट करती है फेमाइन को, बट ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में जब रेनफॉल रिसीव होता है सरफेस पे या प्रेसिपिटेशन जो होता है वो रिसीव होता है, वाटर वेपर जो होता है वो नहीं होता, ड्राई सीजन हो जाता है, ड्राई रीजन हो जाता है, उस कंडीशन पे ड्रॉट सिचुएशन जो है हमें दिखता है, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंट फैक्टर कैन वी कैन से द ट्रिगर ऑफ फेमाइन, ठीक है, एक बहुत सारे फैक्टर हैं जो फेमाइन को क्रिएट करने में अपना हम कह सकते हैं योगदान देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द चॉइस ऑफ क्रॉप प्लांटेड, ओके, देन इन इफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक्स और पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिविल वॉर्स, ये सारी जो सिचुएशन है वो ड्रॉट कंडीशन क्या करते हैं, फेमाइन जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ फेमाइन वी वुड से, ओके। एंड देन द मीटेरियोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट ड्रॉट बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न के हिसाब से हम ड्रॉट कंडीशन को कर सकते हैं प्रेडिक्ट, लाइक द स्ट्रीम फ्लो कितना है हमारा, रिजर्वायर में कितना वाटर अवेलेबल है, एंड द मॉइस्चर ऑफ सॉइल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम,
ठीक है। तो हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कितने समय तक के उपलब्ध है, तो उन सारे सिचुएशन को देख के हम ड्रॉट को मेजर कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ड्रॉट एंड द फेमाइन, एंड देन aridity and drought. Aridity is a very permanent feature, but drought would be a temporary. Okay, so always remember that drought and famine. Okay, so आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, and in our next lecture we will discuss the classification of drought and some, you know, and some the effects and causes of drought also. Okay, so this is enough for today, and thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.